Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. वेलकम बैक वंस अगेन टू द लेक्चर सीरीज, जहाँ पे टीचिंग नहीं होती है बट थोड़ा गाइडेंस आपको दिया जाता है टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट कोर्सेज दैट आर अवेलेबल आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड. Okay, so if you are someone who is confused about the banking and insurance course, okay, which is again an undergraduate course, 3 सालों का होता है, 6 सेमेस्टर्स में बांटा जाता है. मेरी जो जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो कुछ हद तक मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, बट येस, इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया ये कोर्स जो दिया जाता है लगभग सेम सब्जेक्ट्स और सेम चैप्टर्स को कवरेज होता है. ओके, टीचिंग डेफिनेटली अलग अलग होता है, वो कॉलेज टू कॉलेज, फैकल्टी टू फैकल्टी डिफर कर सकता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. BBI is something that it is called in its shorter form as far as the famousness is concerned, कि ये कितना प्रसिद्ध है, क्योंकि एटलीस्ट मुंबई शहर में जितने कॉलेजेस उस कैटेगरी में या इस एरिया में आते हैं, द सीट अवेलेबिलिटी इज नॉट मच. Therefore, as far as the popularity is concerned, इससे ज़्यादा पॉपुलर BMM होता है, उससे ज़्यादा पॉपुलर BAF होता है. जो ये पर्टिकुलर है, दैट इज़ BBI, इसका पायदान थोड़ा कम है. बट माई इंटेंशन, मेरी थिंकिंग, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इज़ नॉट टू टेल यू वेदर दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर वन और नॉट सो पॉपुलर वन. ओके, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु एक्चुअली टेक BBI, what can you expect as far as your course teaching is concerned, your course chapters are concerned for the next 3 years to come, especially with a little bit more details of the first year. Okay, let me move on ahead. This being a 3-year course, ye just like the name suggests, banking and insurance. If you are wondering कि सर इसके future prospects क्या है, मैं सर ये कोर्स कर तो लूँगा बट 3 साल के बाद में what can be predicted about this particular course? Well, to be very frank to you, मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता हूँ. I do not have a crystal ball with me, okay? और अगर किसी के पास होगा भी ना, उनका विश्वास मत करना. Yes, I can definitely tell you that these two fields, especially in the country of India, हमारे देश में ये काफ़ी जल्दी फेमस और चेंज हो रहे हैं. ओके, बैंकिंग सिस्टम जो था वो बिफोर बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ओके, वो इतना मजबूत नहीं था. ओनली शहरों के अंदर बैंक्स एंड बैंक के ब्रांचेस नॉर्मली अवेलेबल रहते थे, बट ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, ओके, एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर बैंकिंग, द सेक्टर ऑफ बैंकिंग कहा जाता था एक जमाने में. बैंक में 2 चीजें मेन होती है, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना. नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉवल एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न इज नॉट देयर मेजर टास्क. वो उनका इतना सा काम रहेगा. दे हैव एंटर्ड इनटू मल्टीपल अदर सर्विसेज
besides only accepting money and giving the money back to the client. Okay, so the industry of banks and the industry as far as insurance is concerned is on the rise, and I can only say in years to come it will see a lot of expansion and accordingly job opportunities in different positions, whether it is the banking sector or whether it is the insurance sector. ये definitely increase होने वाला है. Even the insurance sector, is it seeing a increase? Definitely. Okay, क्योंकि काफी लोगों ने इंश्योरेंस को कभी भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, बट आज बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ कोविड देयर आर मेनी पीपल जिनको मेडिक्लेम के बारे में जानकारी है, जिनको मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पता चला है, और उनको पता है कि उनको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने माता पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना है. लाइक दैट देयर आर मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल पीपल जो इंश्योरेंस के कवरेज में आ सकते हैं. सो वेदर इट इज द बैंकिंग इंडस्ट्री, वेदर इट इज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पर्सनली आई ओनली सी progress and expansion happening in these particular industries. So if you are a student who is fascinated or he thinks I am made to be I see myself being a banker in future or working in any particular insurance position, then yes, gladly this is a course for you and you can definitely pursue it. Right now my plan is to tell you कि आप as far as your learning is concerned, as far as your academics is concerned, आप BBI के अंदर क्या expect कर सकते हो. If you are someone who completes this undergraduate 3 years course, then yes, it is also going to be a good plan. अगर आपको एक professional certification चाहिए तो whether वो CS की डिग्री हो, whether वो CA की डिग्री हो, आप वो definitely future में pursue कर सकते हो. It would be a very good plan for you. Okay, just because this being a specialized course, the availability of seats being less, जो cut off होता है in the better colleges, okay, आपके एरिया में automatically वो थोड़ा हाई रहता है. बट अगर आप वो बेस्ट कॉलेजेस में नहीं एडमिशन पा सकते हो, डोंट लूज हार्ट, इट्स अ 3 years कोर्स. ओके, अगर आपको सेकेंड रैंक कॉलेज के अंदर भी एडमिशन मिल जाता है, प्लीज़ गिव इट अ शॉट, बिकॉज मैंने ये दूसरे लेक्चर्स में भी कहा है, it is not the college but it is the faculty that is a part of that college that is going to determine the quality of education that is going to be imparted in that particular institution. Okay, तो अगर आपको BBI मिलता है, as far as your academics is concerned, especially for year number 1, what are the subjects and the chapters in those subjects that you can be expecting? So आपका जो सेमेस्टर 1 होगा उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी रहने वाले हैं, कुछ आपको ऑप्शनल रहेंगे. जैसे ही आपका ये कोर्स आगे जाता है, आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो थोड़े थोड़े करके इंक्रीज हो जाते हैं और आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना पड़ता है. ओके, सो यू हैव गॉट एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. ये थोड़ी डिटेल में हम आगे पढ़ लेते हैं. इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, के बैंकिंग कितने जेनरेशन से और उसमें क्या क्या बदलाव होते आ रहा है. तो थोड़ा आपको इतिहास समझाया जाएगा, थोड़ा आपको प्रेजेंट टेंस समझाया जाएगा और थोड़ा आपको फ्यूचर टेंस, बट नॉट ऑब्वियसली इन द सेम सेमेस्टर एंड इन द सेम व्हाट यू कॉल सब्जेक्ट. Okay, principles of management, and this is something that is very common in all the self-financed courses. ये subject का ना का पे definitely आपको पढ़ाता ही है. Okay, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितने अकाउंट्स की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज बैंकिंग इज अ सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस इज अ सर्विस सेक्टर. वो फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, तो इनके पास फैक्ट्री नहीं होता है. ओके, इनके सारा जो दारोमदार है वो सर्विसेज पे डिपेंड करता है. सो इनका जो अकाउंटिंग होता है, यू कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर पीपल. तो इनका अकाउंटिंग और इनके जो रूल्स है, ओके, वो बिल्कुल अलग है. तो बैंकिंग का कानून अलग होता है, एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कानून बिल्कुल अलग होता है. उनके ऊपर जो अथॉरिटी बैठती है वो भी अलग रहता है. इन योर 3 years टू कम यू विल बी हैविंग सब्जेक्ट्स जो ये कानून की जानकारी भी आपको पूरी तरह से देगी. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट होगा. दीज आर द चैप्टर्स दैट यू विल हैव.
बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, आप कोई भी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स लो, मिनिमम जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो ये सब्जेक्ट के द्वारा आपको डेफिनेटली दिया जाता है. लास्टली क्वांटिटेटिव मेथड्स, अगेन एनी सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बिजनेस कम्युनिकेशन का हो जाता है, फाउंडेशन कोर्स का हो जाता है, एंड क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स. BMM एक ऐसा कोर्स है जहां पे इसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है. ओके, वो हम मोस्ट प्रोबेबली एक दूसरे लेक्चर में करने वाले हैं. ये आपका सेमेस्टर 1 है. सेमेस्टर 2 के अंदर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स कैन यू एक्सपेक्ट, लेट्स गो थ्रू दैट. Principles and practices of banking and insurance, because the banking sector and the insurance sector is very different from the companies जिसके बारे में आपने सुना होगा. तो ये कंपनीज के प्रिंसिपल्स क्या है, ये ऑपरेट किस तरह से करते हैं, इनकी थिंकिंग क्या है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी थॉट टू यू. मैंने कहा था लॉ, तो जो कानून इससे कनेक्टेड है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बिकॉज whether it is banking, information technology has made leaps and leaps of changes, whether it is banking or the insurance sector. तो connected to that जो आपको सीखना है वो आपको पढ़ाया जाएगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़े हायर लेवल पे, बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 2 आपको पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन कोर्स थोड़े हायर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वर्किंग in an organization, you cannot be the single person, you are going to be working with group of people. तो वो जो ग्रुप डायनेमिक्स है वो आपको किस तरह समझना है, किस तरह हैंडल करना है, वो आपको पढ़ाया जाएगा. एंड लास्टली जो स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, उसका नेक्स्ट लेवल. दिस कंप्राइजेस योर सेमेस्टर 2. ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेगा. आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स ऑफ योर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, बट हाँ ऊपर से मैं आइडिया दे देता हूँ. रीजन बीइंग, ये सारे जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी डायनामिक होते हैं, तो उसमें जो तब्दीली है, चेंजेस है, वो काफ़ी जल्दी लाया जाता है. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब और डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा चेंज डेफिनेटली आएगा फॉर द गुड ऑफ द कोर्स. ओके, सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर 3 के अंदर एंड सेमेस्टर 4 के अंदर. देयर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर कंपल्सरी, सम बीइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज फार एज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इज कंसर्न्ड, लॉज गवर्निंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके कायदे बिल्कुल अलग रहते हैं. फाइनेंशियल मार्केट वेरी इंपॉर्टेंटली, आजकल ये जो मार्केट है आपके यहाँ पे आगे पीछे फ्रूट मार्केट होगा, भाजी मार्केट होगा, बट फाइनेंशियल मार्केट जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है, जिसके अंदर फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, इक्विटी, डेब्ट, दीज आर वर्ड्स जो इन ऑल पॉसिबिलिटी आपने नहीं सुना होगा. ओके, क्योंकि अगर एज अ टीनेजर आप टीवी देखते हो या यूट्यूब देखते हो तो यू मे बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट, ह्यूमर बेस्ड शोज, बट अगर ये कोर्स आप लेते हो, ये जो वर्डिंग्स है ये होते क्या है और ये इसका मतलब क्या होता है, इसमें डीलिंग्स किस तरह होते हैं, ये आपको डेफिनेटली पढ़ाया जाएगा. अबाउट एनी 3 courses, now for that you have got 5 alternatives whether you are doing semester 3 or whether you are doing semester 4. नीचे दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये पहले भी था, risk management and mutual fund management. Risk management is a very modern concept. Okay, mutual fund is a very modern instrument. तो ये क्या है, इसको आपको किस तरह समझना है, क्योंकि इन फ्यूचर इन ऑल पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू हैव कस्टमर्स, यू आर गोइंग टू हैव क्लाइंट्स जिनके पास पैसा तो होगा बट वो जानते या समझते नहीं है कि उस पैसे का इन्वेस्टमेंट किस तरह करना है. तो आपको वो नॉलेज रखना पड़ेगा आपके कस्टमर एंड क्लाइंट को वो जानकारी देने के लिए. ये होगा आपका सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4. मूविंग ऑन टू योर TY which is going to be your semester 5 and semester 6. Again, there are some subjects which are compulsory, international banking and finance. तो सब्जेक्ट जब तक आप सेमेस्टर 3 एंड 4 तक थे नेशनल लेवल तक पढ़ाया गया था, अभी इंटरनेशनल हो जाएगा. और प्रोजेक्ट वर्क जो होगा ये बैंकिंग का होगा. सेमेस्टर 6 में जाओगे तो यही प्रोजेक्ट वर्क इंश्योरेंस के एक टॉपिक पे होगा. एनी 4 कोर्सेस
Now down a list of courses has been recommended, a list of subjects has been recommended, being marketing in banking and insurance, financial reporting and analysis, auditing, business ethics, financial services management, and actuarial analysis in banking and insurance. So again, in depth knowledge, इसमें से ऐसे काफ़ी वर्ड्स है जो आपने फर्स्ट टाइम सुना रहेगा, सर ये तो मैंने पहले बिल्कुल नहीं सुना है. दैट इज़ द रीज़न माय डियर, आपको ये कोर्स करना है अगर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखता है. ओके, आई डेफिनेटली पर्सनली प्रिडिक्ट दैट दीज सेक्टर्स in the Indian economy are going to play a very big and major part. तो अगर ये 3 साल का कोर्स आप करते हो तो आप इस बढ़ने वाले सेक्टर का एक हिस्सा डेफिनेटली आगे जाके बनने वाले हो. ओके, ऑल आई कैन से राइट नाउ इज आई होप everything that I explained in the past few minutes has been understood by you. आपको आने वाले एटलीस्ट ईयर 1 की डिसेंट जानकारी है. अगर कुछ मैंने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लिया तो आप प्लीज़ पीछे जा सकते हो और वो जो चैप्टर्स है उसकी जानकारी आप दोबारा ले सकते हो. आई डू माई बेस्ट कि जो PDF है इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ. अगर कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हो. और ये जो एक्सप्लेनेशन था उसका लिंक आप आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इस पर्टिकुलर BBI के बारे में आपको समझना है. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. I will meet you very, very soon with the explanation of another self-financed course. Till that time, take care. Good day. Bye for now.